హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? ముందు వీడియో మీరు చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి. సౌత్ కొరియన్స్ ఇండియన్స్ని ఎందుకు హేట్ చేస్తారు, అసలు ఏంటి రీజన్ అనేది. రెండోది, ఇండియాలో ఉన్న కియా కంపెనీ కూడా ఇండియన్స్ను ఇండియాలోకి అలౌ చేయదు. అదే కియా కంపెనీ మన ఏపీలో ఉన్న కియా కంపెనీ. దాని గురించి చూద్దాం. आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? ओके नो यस। तो भाई वो सड़क से संसद के सफ़र में हम लोग आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पहुंच चुके हैं। और अनंतपुर पहुंचते ही हमें एक खबर मिली जो मेरे साथी अमृत ने मेरे को दी थी। खबर ये है कि यहाँ किया मोटर्स ने अपना एक बड़ा प्लांट लगाया है। प्लांट में अंदर कुछ 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, जिस उन रेस्टोरेंट्स में केवल कोरियंस को जाने की इजाज़त है, इंडियंस को जाने की इजाज़त नहीं है। साथ ही ये जो गांव है, जो किया मोटर्स जिसमें पड़ता है, उसके आसपास का जो इलाका है वो गांव है पेनुकोंडा। उस पेनुकोंडा में भी 15-20 कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ गेस्ट हाउस हैं जिसमें केवल कोरियंस को जाने की इजाज़त है, इंडियंस नहीं जा सकते। तो हम लोग भी इसको देखने आए हैं। ये इस समय हम लोग कंगनम कोरिया रेस्टोरेंट के पास हैं और अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या ये जो बात है, ये जो खबर है, क्या ये सही है कि नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं। Okay, no. Can we have a cup of tea? now business time, now no possible now. When is it possible? Now busy. When do we come? When do we come? What time do we come? Yes. तो भाई वो This is only for Koreans, huh? only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? क्या अमृत क्या कहा उन्होंने, ऐसा कुछ आप बता पाएं? तो अभी लगता है कि पहले ये मैनेजर जो है हाँ उसने कहा था कि ओनली कोरियंस आर अलाउड। हाँ तो अभी उसने ओनर को फ़ोन किया है एंड नाउ दैट द ओनर नोज दैट वी आर कमिंग फ्रॉम a media organization, he is like no problem, you can have some food here. बट ये वो दिक्कत है ना कि क्योंकि हम मीडिया से हैं या हाँ। हमने बता दिया या हमारे पास कैमरा है तो हमें जाने दे रहे हैं। सिर्फ वो डर रहे हैं कि ये ब्रॉडकास्ट होगा और उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हमको अभी खाना मिलेगा यहाँ जी, पे। और किसी भी सामान्य आदमी जो एक भारतीय है उसको जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ। जिस तरह से उन्होंने हमसे बात करी। और दूसरी बड़ी बात क्या कहते हैं, कुछ तेलुगु भी आए यहाँ पर और वो तुरंत इसको देखते ही चले गए वापस। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप कैमरा क्यों चला रहे हैं। और वो ऊपर इस फ्लोर पे थे, लेकिन इस फ्लोर पे उन्होंने खाना या किसी भी तरह की ऐसा कहा नहीं हमसे कि ऐसा होगा। तो ये बात इस వ్యవహారాలు మనకు ఉండడానికి మన ఈ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా కియా పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయడం వలన కియా వాసులు కొరియన్లు ఎక్కువ మంది నివసిస్తున్నందున ఇక్కడ కొరియాకు సంబంధించిన బోర్డులు వాళ్ళ ఆచరిక వ్యవహారాల గురించి కొంత ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. వాళ్ళు రాకడం వలన ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రాంతం రద్దీగా మారిపోయింది. ఎక్కువ ఉన్నటువంటి గృహ వసతి అంటే హౌస్ రెంట్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా పెరిగినాయి. వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా రెస్టారెంట్లు, గెస్ట్ హౌస్లు వెలిసినాయి. ఇక్కడ తాత్కాలికంగా అంతా వారికి కావాల్సినటువంటి వసతులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇంటి ఓనర్లు ఎక్కువగా హౌస్ రెంట్లు కూడా పెంచడం జరిగింది. దానివలన కొంతమంది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో కొరియన్లు ఏం చేస్తున్నారో, వాళ్ళ ఆహారపు అలవాట్లేమి, వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏమని వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్లకు కానీ వాళ్ళ రెస్టారెంట్లకు కానీ అలౌ చేయడం లేదు. కాకపోతే వాళ్ళని పరిశీలించడానికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని మనము చూసి ఆవగించుకుంటామా లేదన్న ఉద్దేశంతో కూడా వాళ్ళు మనల్ని లోపలికి రానిచ్చుకోవడం లేదా, లేకపోతే ఎందుకు. కాకపోతే ఈ చిన్న ప్రాంతంలోనే కొరియన్ బోర్డ్స్ రెస్టారెంట్లో వెళ్చడం వల్ల ఒక రాని భాషలో ఎక్కువ ఉత్పన్నమైనాయి. ఈ కొరియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి కూడా ఎస్కే యూనివర్సిటీలో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది, ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగం అనేది ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిసింది. కానీ ఈ ప్రాంతంలో నెలకొల్పి ఉంటే బాగుండేదని నా యొక్క అభిప్రాయం. అయితే ఈ గెస్ట్ హౌస్ ఓనర్లు వాళ్ళని కూడా ఆ గెస్ట్ హౌస్లోకి పోనీయరా? పోనీరని ఓనర్లు అన్నారు మాతోటి.
ఎన్ని రెస్టారెంట్లు వచ్చినాయి ఇక్కడ కొరియన్ అవి ఒక 15 వరకు ఉన్నాయి. ఇంకా గెస్ట్ హౌస్లో ఒక 10 వరకు ఉంటాయి. అంటే అంటే గెస్ట్ హౌస్లో అంటే ఒక గెస్ట్ హౌస్లో దరిదాపులు 20-30 మంది వరకు అకామిడేట్ ఏర్పాటు చేశారు. तो हम अभी कंगनम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और हमारा एक्सपीरियंस वही रहा जो हमें खबर मिली थी, अमृत ने जो हमें बताया था वो बिल्कुल सही थी कि वहाँ पर इंडियंस को अलाउड नहीं है, केवल कोरियंस ही जा सकते हैं. ये पूरी तरह से एक नस्लभेदी प्रक्रिया है जिससे यहाँ के लोग गुजर रहे हैं. उसमें दो चीज़ें हमें समझ में आई. कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हम लोग खाना ही नहीं चाहते तो हम जाना ही नहीं चाहते, लेकिन ये भी सच है कि वो अलाउड ही नहीं कर रहे हैं तो आप जाएंगे क्यों? क्योंकि वहाँ चाय भी है, अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहें तो वो भी आप पी सकते हैं, लेकिन वो अलाउड ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते. तो भारत में रहकर आप भारतीय होने के साथ भी भारत में बने किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे हैं, ये काफ़ी स्ट्रेंज है. क्या अमृत? हाँ, और लास्ट ईयर फेसबुक पे जर्नलिस्ट राहुल एम जो है वो पारी के साथ काम करते हैं, उसने भी लगाया था कि सिर्फ ही ऑल्सो हैड द सेम एक्सपीरियंस जो उनको अलाउ नहीं किया अंदर रेस्टोरेंट, क्योंकि दे सेड ओनली कोरियंस को अलाउ कर सकते हैं और इंडियंस को अलाउ कर सकते हैं, अलाउ नहीं करते हैं. तो लगता है कि वो बात सही था. और लेकिन वो जो रेस्टोरेंट जहाँ राहुल गए थे वो बंद हो गया है, क्योंकि आफ्टर दैट एक कंप्लेंट फाइल हुआ था, कुछ हुआ था, तो वो बंद हो गया है. लेकिन ऐसे अभी और 15-20 रेस्टोरेंट्स है, ये सिर्फ ये विलेज पेनुकोंडा में, जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देख सकते हैं हम. हाँ. अच्छा, ये बताइए कि आपकी जब ओनर से बात हुई तो वो क्या कह रहे थे? ओनर पहले तो बोल रहा था कि विच चैनल आर यू ब्रॉडकास्टिंग इट ऑन, एंड तो मैंने बोला कि हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी. तो उसको समझ में आया कि ये अभी मीडिया में जाने वाला है, तो इसीलिए उसके बाद यू कैन हैव फूड नो प्रॉब्लम बोल के बोल रहा था मुझे. लेकिन एक सामान्य आदमी के तौर पर अगर आप जाएं तो वो किसी भी तौर पर जिसके पास कैमरा नहीं है तो वो अंदर नहीं जा सकता है. हाँ. और कुछ लोग हमें और भी मिले जो गेस्ट को लेके आ रहे हैं, यानी कि जो किया मोटर्स में काम कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं. वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो नेपाल के कुछ लोग हैं, वो काम कर रहे हैं. कोरियंस तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय लोगों को खाने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं. ये साफ है. हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है. और कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर. हाँ, लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 15 रेस्टोरेंट तो है सिर्फ ये विलेज में. अच्छा, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी वो किसी ना किसी भारतीय की होगी. हाँ. उसने रेंट पर दिया होगा इसे, तो वो किसी भी तरह का विरोध क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये कोरियन लोग जो है रेंट ज़्यादा पे कर रहे कहते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल सिटीज़न. और इसके वजह से किया मोटर्स का फैक्ट्री के वजह से यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आ रहे हैं काम करने के लिए, नहीं तो कोई भी इंजीनियर्स आ रहे हैं, इसके वजह से रेंट जो पहले 3,000 था अभी वो 12,000 हो गया है. तो रेंट ज़्यादा मिल रहे हैं लोगों को, तो इसीलिए ये सब इसको क्या बोलता है, इश्यू नहीं ले रहे हैं इससे. और चलो ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो ठीक है, कैसे भी हमको कोरियन उसमें खाना नहीं है, हमें कैसे भी कोरियन खाना पसंद नहीं है, तो हम जाएं क्यों? लेकिन ये तो पूरी तरह से नस्लभेद है ना. हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है जाने के लिए. ये लोग नहीं जाना चाहते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अगर जाना चाहेंगे तो एंटर नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज़ बेसिकली इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन योर रेस और आइडेंटिटी. सो ये नहीं, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं. मेरे जो कैमरा पर्सन है जो अभी कैमरे के साथ थे, सबसे ज़्यादा उनको ही फेस करना पड़ा, सरजीत को ही, कि उनसे बार बार कहा कि आप बंद करो बंद करो बंद करो. अगर वो बिना कैमरे के जाते हैं और एक आम भारतीय की तरह, तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा, ये बिल्कुल साफ़ है. हाँ, और मुझे लगता है कि ये कैमरे पे उन्होंने बोला तो है कि ये केवल कोरियंस के लिए, इंडियंस हाँ, के लिए नहीं है. पहले तो मैनेजर ने बोला था कि सिर्फ कोरियंस के लिए है, और जब ओनर से बात हुई है और उनको पता चल गया कि ये मीडिया वाले हैं, तो तब बात बदल गई है. और अभी मैनेजर तो बोल रहा था कि मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे थे, तो ऐसे कुछ बहाना बना रहे हैं कि हाँ. तो या वो है बेसिकली. ये हमने आपको बताया कि अनंतपुर में जो किया मोटर्स का जो प्लांट लगाया, उसके बाद यहाँ पर जो कोरियंस की जो संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बाद रेस्टोरेंट्स और जो है गेस्ट हाउस जो बढ़ते चले गए, उसमें एक अलग तरह का नस्ल भेद हो रहा है कि भारतीय नहीं जा सकते, उसमें केवल कोरियंस ही जा सकते हैं. इसका संज्ञान यहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं
जो भी इस पूरे मुद्दे पर अपना काम कर सकता है, उसे देख सकता है, उसे समझ सकता है, उसे तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो साफ तौर पे यही कहूँगा, क्योंकि ये पूरी तरह से नस्लभेद है जो साफ दिखा है हमें, और हमने इसको एक्सपीरियंस करके हमने आपको बताया है। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट या घटता जादू। ఇది నేనైతే ఒకటే ఒపీనియన్ ఏంటంటే కియా కంపెనీ ఇండియాలో తోలేయాలి బయటికి, అంతే. అంతకుమించి నా ఒపీనియన్ ఏమీ లేదు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ద రియాక్షన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. త్వరలో ఇంకా మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాం. థ్యాంక్ యూ.